Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read chapter 6 of class 12th history, Bhakti and Sufi traditions from 8th to 18th century. In this chapter, I have discussed the brief history of the Bhakti, what is the meaning of Bhakti, and what is the meaning of integration of cult. The both topic is explained by me in my previous video. I have also discussed there the importance of Bhakti. I have also discussed about the religious practices, why it emerged on the vast level on the Indian continent. Today, we are going to read the great and little traditions. Today, we will discuss on that topic. So, let's start this topic, great and little tradition. The terms great and little traditions were coined by sociologist named Robert Redfield in the 20th century to describe the cultural practices of the peasants' societies. He found that peasants observed the rituals and customs that emanated from the dominant social categories, including the priests and rulers. These he classified as a part of the great tradition. At the same time, peasants also followed the local practices that did not necessarily correspond with those of the great traditions. These included within the category of the little tradition. He also noticed that the both great and little traditions changed over time through the process of the interactions. While scholars accepted the significance of these categories and the process, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great and little. The use of quotation marks of the great and little is one way of indicating things. I hope you are getting what I want to understand you. Because if you see my previous video where I have clearly defined what is the meaning of great and what is the meaning of little tradition. Where I have also discussed that the society divided into two parts behalf of the religious faith and beliefs, behalf of the religious practices. The upper class of the society, they believe with the Brahmanical text and Brahmanical gods. They worship God in the proper form, in the Sanskrit hymns, the prayers. The poems was compiled in the very proper manner. But in the little traditions, these are all absent. In the little traditions, where there is no proper idol, where there is no deity's shape and size, I have also discussed about. I have given the two examples. First example of the Jagannath temple, and second example I have also discussed there, that the stone which was covered of the, उनको पूरा एक तरीके से क्या सिंदूर, पत्थर को सिंदूर से पोत करके उनको अलग कर दिया जाता था और फिर उसे स्थानीय देवताओं के नाम दे दिए जाते थे। आपको अगर याद होगा तो मैं एक पैराग्राफ के बारे में पढ़ रहा हूँ, आप अगर इसे देखिएगा तो आपको आसानी से वो बातें समझ में आएगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। आप such instance of the integration are evident amongst the goddess cult as well worship of the goddess, often simply in the form of the stone smeared with what ochre was the evidently widespread.
The local deities were often incorporated within the Puranic framework by the providing them with the identity as wife of the principal male deities. Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu, in other instances with Parvati, the wife of Shiva. It means I have already explained it. The differences between the great traditions and little tradition and their faith and belief, where I have also discussed that without any discriminations, the upper class of the society accepted the practices of the lower class of the religious faith and beliefs. Jagannath temple, the shape and size, if you will minutely observe, then you can find the shape of the Lord Vishnu is totally different. Shape is here, you can see 6.2, the Jagannath external right with his sister Subhadra, his brother Balram. What is the shape? Is this shape match the actual idol of the Lord Vishnu or Balram? No. If the shape of Lord Krishna or Lord Balram in your mind, then you can easily compare that shape and this shape. The Krishna have a wheel, a chakra, and the Balram, उनके पास एक हल है. दोनों राजकीय वेश में हैं. कृष्ण के पास मुरली है, बांसुरी है, बलराम के पास हल है. दोनों आदम कद में हैं, ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल डिफरेंस दिख रहा है. तो कर इन्हीं चीज़ों के आधार पे पहली बार एक सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट रेडफील्ड था, 12th सेंचुरी पे इन प्रैक्टिसेस के आधार पे उन्होंने क्लियरिफाई किया कि समाज में कम से कम दो तरीके के धार्मिक विश्वास प्रचलित हैं. समाज का ऊपरी वर्ग, जिन्हें ग्रेट ट्रेडिशन कहा गया, वो लोग का विश्वास अलग है, उनके देवी देवता अलग हैं, उनके देवी देवताओं के नाम अलग हैं, उनके पूजा पद्धतियाँ, उनकी परंपराएं अलग है. जबकि समाज का दूसरा वर्ग, जो कृषक समाज है, जो लोअर सोसाइटी है, उनके अपने धार्मिक विश्वास अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनके भगवान, उनके स्थानीय देवी देवता भी अलग हैं. लेकिन यहाँ पे डेविड रेडफील्ड कहते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि ये एक आश्चर्यजनक बात है कि दोनों धर्मों के लोगों ने, दोनों विश्वास के लोगों ने एक दूसरे के मतों को बड़ी आसानी से, बड़े ही उदारता से स्वीकार किया. उन लोगों ने इन भावनाओं को एक साथ मर्ज कर दिया. अपर क्लास के लोगों ने लोअर क्लास के विश्वास को, और लोअर क्लास के लोगों ने अपर क्लास के विश्वास को बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया. कहता है कि जो ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशन जैसे जो वर्ड हैं, ये 20th सेंचुरी में सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा जो पीजेंट सोसाइटी थी, जो पीजेंट सोसाइटी का कल्चर था, जो उनके कंडक्ट और ट्रेडिशंस थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया. रॉबर्ट रेडफील्ड ने यहाँ पे देखा कि किसान उन कर्मकांड और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था. उन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी, ग्रेट ट्रेडिशंस की संज्ञा दी, ग्रेट ट्रेडिशन कहा. साथ ही जो पीजेंट सोसाइटी थी, उनकी जो ट्रेडिशनल वर्शिप मेथड थे, उनके जो लोकाचार थे,
जिनका किसान पालन करते थे, जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न था, जो ग्रेट ट्रेडिशंस के लोगों के पद्धतियों से, पूजा पद्धति, आराधना पद्धति से टोटली भिन्न था, इसे लिटिल ट्रेडिशन कहा गया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान, इट मीन्स ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशंस की मान्यताओं को एक दूसरे से पारस्परिक आदान प्रदान के मेथड से पारस्परिक एक्सचेंज हुआ उनकी फेथ और बिलीव्स, और दोनों ने बिलीव्स को एक्सेप्ट भी किया। हालांकि जो स्कॉलर हैं एक्सेप्ट दैट सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कैटेगरीज एंड द प्रोसेस, जो स्कॉलर हैं वो इन प्रक्रियाओं के वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते। विद्वान ये नहीं कहते कि दोनों की पूजा पद्धतियाँ अलग अलग नहीं थी। सभी मानते हैं कि अपर क्लास की पूजा पद्धति और लोअर क्लास की पूजा पद्धति अलग अलग थी, लेकिन वे उन शब्दों में पद सोपानात्मक हायरार्कियल फॉर्म का जो स्वर उभरता है उसकी अवमानना करते, उसको नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। इट मीन्स किसके संदर्भ में? भगवान के संदर्भ में, उनकी मान्यताओं के संदर्भ में। उनकी मान्यता बड़ी है, इनकी मान्यता छोटी है, और उनकी मान्यता छोटी है, उनकी मान्यता बड़ी है। इस तरह की बातों में वो अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ध्यान से अगर आप देखें तो आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेगी। जैसे लोकल डिटीज़ की जो गॉडेस थी उनको ग्रेट डिटीज़ के, मेल डिटीज़ के साथ जोड़ दिया गया। जैसे लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती जैसी देवियों को प्रोमिनेंट फेस के गॉड से इंटरेक्ट, जो उनके साथ उनका संबंध, उनको पत्नी बता दिया गया कि अपने में यूनिपात थे। तो ये था ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशंस। अब देखेंगे कि दोनों के बीच क्या कन्फ्लिक्ट हुआ और किस तरीके के दोनों के बीच आपस में डिस्प्यूट्स हुए। 1.2 Difference and conflicts often associated with the goddess form of the worship. This topic is very important. Why? Because in this topic we are going to read the Tantrism. यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट ए नोट ऑन द तंत्रिज्म। तंत्रिज्म की व्याख्या करिए, तंत्रिज्म क्या था। तो इन चीज़ों को ध्यान से 1.2 को समझिएगा। द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स often associated with the goddess were form of the worship that were classified as a tantric. Tantric practices were widespread in several parts of the subcontinent. They were open to women and men, and the practitioners often ignored difference of the caste and class within the rural context. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern and northern and southern part of the subcontinent. All of these somewhat divergent and even disparate belief and practices would come to be classified as the Hindu over the course of the next millennium. The divergence is perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic traditions. The principal deities of the Vedic pantheon, Agni, Indra, Som, become the marginal figure, rarely visible in the textual or visual representations. And while we can catch glimpses of Vishnu, Shiva, and the goddess of Vedic mantra, these have little in common in the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious descriptions, the Vedas continue to be the reward as the authoritative, not
Surprisingly, there were sometimes conflict as well. Those who value the Vedic traditions often commanded practices that went to beyond the closely the regulated connect with the divine through the performance of the sacrifices of the preciously chanting months. On the other hand, those engaged in the tantric practices frequently ignored and the authority of the Vedas also. Devotees often tend to project their chosen deity, either Vishnu or Shiva, as a supreme relation with other traditions such as the Buddhism or Jainism, were also often fought with tension if not open conflict. The traditions of devotion or bhakti need to be located within this context. The devotional worship had a long history of almost 1,000 years before the period we are considering during this time. Expressions of the devotional range from the routine worship of deities within temple to ecstatic adoration where devotee attained the trance-like state. The singing and chanting of the devotional composition was often a part of such a mode of the worship. This was particularly true of the Vaishnav and Shaiva sect. Okay, so let's start this topic. In this topic, we are going to read the conflict between the Tantrism and other sects. क्या भेद था और क्या संघर्ष था, क्या अंतर थे तांत्रिक विचारधारा में और अन्य धार्मिक संप्रदायों में, इन चीज़ों पे देखने का प्रयास किया। ऐसा क्यों हुआ होगा ऐसा? As I inform you that in the society there were two types of faith and belief practices. One was the great tradition and second that was little traditions. And here I also mentioned that no doubt to say that both accepted their view with liberally. They merged their faith and beliefs without any discriminations. But in the different form, in the little traditions, we have seen that is the Tantrism way. एक नई परंपरा के रूप में तांत्रिज्म का विकास हुआ। इनमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते, कुछ भेद दिखाई देते, कुछ मान्यताओं में परिवर्तन अंतर दिखाई देता है और यही था वो एक दूसरे के बीच संघर्ष और भेद का कारण। क्या था? कहते हैं often associated with the goddess व form of the worship that was classified as तांत्रिक। कहते हैं अधिकांश जो देवियों की आराधना पद्धति थी, ये देवी गॉडेस की जो पूजा पद्धति थी, ये पूजा पद्धतियाँ तांत्रिक के नाम से जानी जाती थी। इसे ही तांत्रिक पूजा पद्धति कहा जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों शामिल हो सकते थे। स्त्री और पुरुष दोनों तांत्रिज्म को फॉलो कर सकते थे, दोनों तांत्रिज्म मेथड से पूजा कर सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय जो संदर्भ में वर्ग और वर्ण में जो भेद की था वो तांत्रिज्म में नहीं था। तांत्रिज्म में किसी भी वर्ण, किसी भी क्लास, किसी भी क्लैन, किसी भी ग्रुप, कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि अपर क्लास में दिखाई देता है, लोअर क्लास में नहीं था। इस तांत्रिज्म में तो स्पेशली नहीं था। तांत्रिज्म में सभी स्त्री पुरुष, सभी जाति के वर्ग, सभी क्लास के वर्ग, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, तांत्रिज्म को फॉलो कर सकता था। उसके लिए कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं थी। ये अंतर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि देवियों की पूजा पद्धति, जो गॉडेस की जो वर्शिप मेथड्स थी, वो तांत्रिज्म कहलाई भारतीय उपमहाद्वीप में। इसको कौन कर सकता था? तो कहता है कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस
कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, मेल एंड फीमेल, अपर क्लास, लोअर क्लास, इवन एसटी एंड एससी। ड्यूरिंग दैट टाइम समाज का वो वर्ग जो अनटचेबल था, सभी इस तांत्रिज्म को फॉलो कर सकते थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें वेदों की बात या पर्टिकुलर संस्कृत लैंग्वेज की बात या ऐसे किसी धार्मिक प्रैक्टिसेस की बात जो वैदिक ट्रेडिशंस में थी, कोई ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पालन किया जाए। यहाँ व्यक्ति अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति को बना सकता था और गॉड और गॉडेस को पूज सकता था। कहता है कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण में भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचार में ने शैव धर्म और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। तांत्रिज्म जो प्रैक्टिसेस आप देखेंगे कालांतर में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, और ये 7वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म वज्रयान और तंत्रयान में टूट जाता है और टोटली वज्रयान और तंत्रयान कर्मकांडी है, ये तंत्रिज्म पे बेस्ड हो जाता है और बुद्ध के साथ एक महिला डिटीज को बैठा दिया जाता है, जिसे तारा देवी कहते थे। तो कहता है ये पूरी तरीके से शैविज्म को प्रभावित किया और बौद्धिज्म को प्रभावित किया। शैविज्म में जब हम आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे कि शैव पाशुपत, कापालिक, द्रोणमुख और वीर शैव या लिंगायत 4 सेक्ट थे, जिसमें कापालिक और द्रोणमुख ये काफ़ी रिचुअल्स थे, ये तंत्रिज्म को फॉलो करते थे, तंत्र साधना में लीन रहते थे, समाज से दूर रहते थे। तो कहता है कि दोनों जगहों पे आपको तंत्रिज्म दिखाई देगा। 7वीं सदी तक ये दोनों धर्म इससे प्रभावित हुए तंत्रिज्म से। अगर आप यहाँ से देखें तो कहता है कि द मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस शैविज्म एज वेल एज बौद्धिज्म, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी पार्ट में बौद्ध धर्म और शैव धर्म तांत्रिज्म से प्रभावित हुए। अब कहता है, अब यहाँ एक स्कल्पचर दिया हुआ है। स्कल्पचर ऑफ बौद्धिस्ट गॉडेस द मारीची। बौद्ध धर्म में एक गॉडेस का कॉन्सेप्ट कर दिया गया, तारा देवी, मारीची। ये तांत्रिज्म को ही स्पेशली डिनोट करता है, इंडिकेट करता है बौद्ध धर्म के तांत्रिज्म परंपरा को। द 10th century बिहार, द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस of the integration of different religious beliefs and the practices. What I want to, it is clearly explained with the help of this statue or idol which find in Bihar, the Marichi in the Buddhism. It shows the Tantrism flourish in the later period in the Buddhism. बौद्ध धर्म में इस तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कहते all of this somewhat the divergent and the evident disparities. बाद की परिस्थितियाँ बदली। कहता है खासतौर से उपमहाद्वीप में जो पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में थे, तंत्रिज्म का प्रभाव दिखाई देता है। आगामी सहस्राब्दी में इन समस्त विश्वासों और जो पूजा पद्धति थी, आचार व्यवहार के नियम थे, का वर्गीकरण हिंदू के रूप में होगा। तो वर्ड हिंदू आया। और यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो ये विषमता और अधिक रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वैदिक देवकुल के जो देवी देवता थे उसमें अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह से अब गौड़ हो गए, छोटे हो गए। साहित्य में और मूर्तिकला दोनों में अब इन देवी देवताओं का कोई भी विशेष रूप से अंकन दिखाई नहीं देता, न अग्नि का, न इंद्र का, न सोम का, बल्कि इनकी जगह अब नए देवी देवता वैदिक मंत्रों में जैसे विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इनकी तुलना में महत्वपूर्ण देवी देवता के रूप में दिखाई देते हैं। पौराणिक जो मिथक हैं, जो धार्मिक कहानियाँ हैं, मैं कदापि हमेशा इन्हीं के बारे में, इनकी विशेषताओं को, जो पहले गौड़ थे, शिव, विष्णु, उनको महान देवता के रूप में अब शो किया जाने लगा, दिखाया जाने लगा।
इसकी तुलना उनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों की प्रामाणिकता माना जाता रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक नॉट सरप्राइजिंगली, ये जो पैराग्राफ है आपका, नॉट द सरप्राइजिंगली टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या था क्लियर आपको दिखेगा। मैंने 2 पॉइंट्स ऊपर आपको बताए हैं, इसके साथ साथ आप इस पैराग्राफ को करेंगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, कह रहा है नॉट सरप्राइजिंगली देयर वर सम टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट एज वेल दोज हु वैल्यूड द वैदिक ट्रेडिशंस ऑफन द कंडेम्ड द प्रैक्टिसेस दैट वेंट बियॉन्ड द क्लोजली। कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों को, उन सभी क्रियाकलापों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों का संपादन से परे थे। जो मंत्रों और यज्ञों के अलावा अन्य जो क्रिया पद्धतियाँ थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उन सभी क्रिया पद्धतियों को, उन सभी एक्टिविटीज़ को धर्म के अंदर लाने से अपर क्लास के लोग पूरी तरीके से मना करते थे, अस्वीकार करते थे। और कहता है कि जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो यज्ञों का संपादन ना करे, उनको ये लोग विशेष महत्व नहीं देते थे। इसके विपरीत जो लिटिल ट्रेडिशन के लोग थे, जो तांत्रिज्म को फॉलो करते थे, कहता है इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे थे वे वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, वैदिक देवी देवताओं को नहीं मानते थे। उसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं में जैसे बौद्ध तथा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई देता है, यद्यपि दोनों के बीच की लड़ाइयाँ, दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम ही दिखाई दिए, लेकिन ऐसे जब प्रैक्टिस होते थे तो दोनों के बीच कुछ संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो जाती थी। भक्ति परंपरा को हम इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे रीड करेंगे, उसमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिर में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गायन महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण पूजा पद्धति के रूप के भाग थे। वैष्णव और शैव संप्रदाय पर भी ये जो हाइम्स थे, ये प्रेयर्स थे, उनका प्रभाव दिखाई देता है। तमाम तरीके की कविताएं, तमाम तरीके की चीज़ें लिखी गई, बताई गई, गाई गई। जैसे कहता द पोएम्स एंड द प्रेयर्स अर्ली ट्रेडिशंस भक्ति, कहता इन द कोर्स ऑफ द evolutions of these forms of the worship in many instances the poetic saints emerged as the leader around whom they developed as the community of the devotees. Further, while Brahmins remained important the intermediaries between God and devotee in the shape from bhakti, these traditions also accommodate and acknowledge women and the lower caste categories considered ineligible for the liberation within the orthodox Brahmanical framework. What also characterized traditions of the bhakti was remarkable diversity. कहता है कि आराधना पूजा पद्धति के तरीकों में क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। एक बड़ा वर्ग इन भक्त संतों के साथ जुड़ गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने, मीडिएटर बने, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्ण के लोगों को भी स्वीकृति दिया, को भी भक्ति में स्थान दी, उनकी महत्ता बताई। जैसे रैदास का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। कहता है कि ये जो निम्न वर्ण के लोग थे, जो महिलाएं थीं, उनको भी भक्ति में पूरा पूरा स्थान दिया गया। करे कलमियार, आंडाल, मीराबाई, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जो भक्त की महान संत परंपरा में अपने को शामिल की, उनको मान्यता भी दी गई।
भक्ति परंपरा की एक अन्य विशेषता इसकी विविधता भी है, डाइवर्सिटीज़ है। कहता है भक्ति वाज अ रिमार्केबल डाइवर्सिटीज़, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है। एट ए डिफरेंट लेवल द हिस्टोरियंस ऑफ द रिलीजन ऑफन क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, सगुन with attribute and nirgun without attribute. The former include the traditions that focused on the worship of the specific deities such as the Shiva, Vishnu, his avatars, the incarnations, and the form of the goddess or Devi. All often the conceptualized in the anthropomorphic form. Nirgun Bhakti, on other hand, was worshipped of an the abstract form of the god. कहता है कि यदि भक्ति को हम कैटेगराइज करें दूसरे स्तर पे, तो धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्ग में बांटते हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में भगवान के स्वरूप, वेयर देयर गॉड हैज शेप एंड साइज, दैट इज सगुण भक्ति, गॉड हैज नो शेप एंड साइज, दैट इज निर्गुण भक्ति। तो कहता है कि धर्म स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण मीन्स विथ एट्रीब्यूट्स, कुछ विशेषण सहित, और कहता है निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स, विशेषण विहीन, कोई भी उनको विशेष रूप से दिया नहीं है, आकार प्रकार स्वरूप नहीं दिया गया। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवी देवताओं की आराधना की जाती है जिनके मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। जैसे अब इसको आसानी से समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि सगुण भक्ति शाखा में आप बांटेंगे तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो तरीके के भक्ति सेंट आपको दिखेंगे। सगुण भक्ति शाखा में मैंने आपसे जैसे बताया कि सगुण भक्ति विथ एट्रीब्यूट्स, इट मीन्स वेयर देयर इज गॉड हैज शेप एंड साइज लाइक राम एंड कृष्ण। देयर इज टू ग्रुप्स इन द सगुण भक्ति, राम एंड कृष्ण। राम भक्ति एक तुलसीदास एंड कृष्ण भक्ति रसखान, मीराबाई एंड अदर फॉर्म। निर्गुण भक्ति शाखा विदाउट एट्रीब्यूट्स, इट मीन्स वेयर देयर इज नो गॉड हैज शेप एंड साइज। इन दिस categories the various saints like Kabir is the very important saint, like Nanak। कबीर हमेशा राम राम कहते हैं, बट ये राम उनके निराकार ब्रह्म है जिनका स्वरूप निश्चित नहीं है। तो कहता है कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो साफ साफ कहते हैं कि भक्ति को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान का शेप और साइज निर्भर है और इसके अंतर्गत भगवान विष्णु और भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का और उनके अवतारों की पूजा होती है, विभिन्न देवियों की पूजा होती है। और निर्गुण भक्ति में भगवान का शेप और साइज नहीं है, उसमें किसी भगवान के आकार प्रकार की पूजा नहीं होती, वरन एक ब्रह्म की पूजा होती है, ये निर्गुण भक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो शैव अलवार और वैष्णव नेनवार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।